Good morning, students. In the running topic of surface chemistry, today we will study about the types of adsorption. Before this, what is the combined process of adsorption and absorption? That is called sorption. This one is the combined process of adsorption and absorption. That is called sorption. The process in which absorption and adsorption both occurs simultaneously is called sorption. यानी ऐसा फिनोमेना जिसके अंदर एब्जॉर्प्शन और आपका एब्जॉर्प्शन दोनों एक साथ होते हैं, उस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? सॉर्प्शन कहते हैं. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, डाइंग ऑफ फैब्रिक. डाइंग ऑफ फैब्रिक यानी जो फैब्रिक होता है उसको डाई करना, उसको हम क्या कहते हैं? दिस वन इज द एग्जाम्पल ऑफ जॉर्प्शन. क्लियर? नाउ desorption. Desorption means the phenomena of adsorbed molecule getting dislodged, means removal from the surface is called desorption. यानी वह फिनोमिना जहां से क्या होता है? मॉलिक्यूल क्या हट जाता है, सरफेस से मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? डी मीन्स रिमूवल, उसको डिसॉर्प्शन कहते हैं. क्लियर? नाउ टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन. टाइप्स ऑफ एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन इज ऑफ टू टाइप्स. इट मीन्स physisorption and chemisorption. Depending upon the nature of the forces between adsorb and adsorbate and adsorbent, adsorption are of two types. The first one is physisorption and the second one is chemisorption. फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन, ये दो प्रकार होते हैं. किसके आधार पर? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फोर्सेस बिटवीन द एडसॉर्बेट एंड एडसॉर्बेंट. द एडसॉर्प्शन इज ऑफ टू टाइप, फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन. क्लियर? नाउ लेट्स सी व्हाट इज फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन. टाइप्स ऑफ adsorption on the basis of the nature of the forces between adsorbate and adsorbent. If force of attraction is weak, then it is called physical sorption, physical adsorption, or physisorption. Whereas if force of attraction are strong, then it is called chemical adsorption. Chemical adsorption or chemisorption. और केमिजॉर्प्शन, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है तो उसको फिजिजॉर्प्शन या फिजिकल एडसॉर्प्शन कहते हैं, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द adsorbent and adsorbate which is strong, then it is called chemical adsorption or chemisorption.
एब्जॉर्प्शन। नाउ सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी यहां क्या होंगे, वंडर वॉल फोर्सेस, वंडर वॉल फोर्सेस, क्लियर। यहां पर होंगे आपके वंडर वॉल्स फोर्सेस, वेयर एज यहां क्या होंगे, कोवलेंट, ठीक है जी। तो इसके बिहाफ पर यहां इनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड का अट्रैक्शन होगा, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में, जबकि यहां वंडर वॉल्स फोर्सेस का अट्रैक्शन होता है, क्लियर। नाउ हीट एडजॉर्प्शन, नेक्स्ट फिनोमिना है हमारा हीट एडजॉर्प्शन। हाउ वी कैन डिफाइन दिस, क्लियर। हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, हीट ऑफ एडजॉर्प्शन, it means it is the amount of heat evolved when 1 mole of an adsorbate, that is maybe gas or liquid, is absorbed on the surface of an adsorbent। अगर आप ये मानिए कि कितना अमाउंट हीट इवॉल्व होता है जब कोई मॉलिक्यूल क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर, तो जितना भी हीट इवॉल्व होता है उसको हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन, ये जो फिनोमिना था, इरविंग लैंगम्यूर डिस्कवर्ड दिस फिनोमिना, इरविंग IRVING and Langmuir discovered this phenomena of adsorption. Now difference between physisorption and chemisorption. So let's see the difference between physical sorption or chemical sorption, means physisorption and chemisorption. The molecules are attracted to the surface simply by van der Waals forces। यानी फिजिजॉर्प्शन के अंदर जो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच मॉलिक्यूल्स होते हैं वो van der Waals फोर्सेस के द्वारा जुड़े रहते हैं, whereas the molecules are held to the surface by the chemical bonds, that is covalent bonds forming surface compounds, and it is relatively weak। इसके ये क्या कैसे होते हैं, these are the weak forces whereas it is relatively strong, and the heat of adsorption is low between 20 to 40 kilojoule per mole। यहाँ पर जो हीट क्या होती है, एडजॉर्प्शन की जो इवॉल्व होती है वो लो होती है, जो कि 20 to 40 किलोजूल पर मोल के बीच लाई करती है, whereas the heat of absorption is high in the case of chemisorption and it is the range of 40 to 200 kilojoule per mole। Physical sorption or physisorption is a reversible process, whereas chemical sorption or chemisorption is a irreversible process। आगे देखते हैं। Next, physisorption occurs the formation of multi-layer of adsorbed particle। यहां पर क्या होती है, इसके अंदर फॉर्मेशन होती है मल्टी लेयर ऑफ एडसॉर्ब पार्टिकल की, whereas it involves the formation of मोनोलेयर ऑफ एडसॉर्ब पार्टिकल। यहाँ क्या होंगी, आपको कई लेयर नजर आएंगी जो एडसॉर्ब पार्टिकल होगा, यानी जो उस सरफेस के ऊपर जाकर के क्या होगा, एडसॉर्ब होगा, जबकि केमिसॉर्प्शन के अंदर क्या होती है, केवल एक ही लेयर बनती है। नेक्स्ट, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर। जो फिजिकल जॉर्प्शन या फिजिजॉर्प्शन होता है वो कैसा होता है, इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, हेंस मे बी फाउंड इन ऑल इंस्टांसेस। ये स्पेसिफिक नहीं होता नेचर के अंदर, इसलिए सभी इंस्टांसेस पर ये मिल जाता है। वेयरएज केमिसॉर्प्शन इज स्पेसिफिक इन नेचर, सो occurs only when there is a tendency to form chemical bonds between adsorbate and adsorbent। यानी ये कब होगा, स्पेसिफिक होता है नेचर के अंदर, कब नजर आएगा, जब एडसॉर्बेट और एडसॉर्बेंट के बीच क्या बनेंगे, केमिकल बॉन्ड्स बनेंगे।
नेक्स्ट, इट अकर्स एप्रिशिएबली ओनली एट लो टेम्परेचर। ये किसके ऊपर हो जाता है? इट अकर्स एट लो टेम्परेचर। द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस डिक्रीजेस। ठीक है, जैसे ही इस सरफेस का टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज कर जाता है। जैसे सरफेस का टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ता है, इसका ये होता है, ये जो प्रोसेस है ये क्या करता है? डिक्रीज हो जाता है। एब्जॉर्प्शन डिक्रीज एज द टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इज रेज्ड। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये डिक्रीज कर जाता है। वेयर एज इट अकर्स एट ऑल द टेम्परेचर, बट एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। यानी ये जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है? बढ़ता चला जाता है। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल जॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन या केमिकल जॉर्प्शन। नाउ व्हाट आर द examples of physisorption or chemical sorption? Let's see the example of physisorption and chemisorption. Example of physisorption, इसका एग्जाम्पल है आपका एडजॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैसेस ऑन चारकोल। एडजॉर्प्शन ऑफ वेरियस गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ चारकोल। चारकोल की सरफेस के ऊपर दूसरी गैसेस का एडजॉर्प्शन। नाउ एग्जांपल ऑफ केमिजॉर्प्शन। Example of chemisorption are oxygen on, first one is oxygen on noble metals, gold, silver and platinum. इसका इनकी सरफेस के ऊपर एडजॉर्ब होना। नाउ हाइड्रोजन ऑन निकेल, etc. When atomic oxygen is adsorbed on the graphite surface, carbon monoxide is formed. That is C plus half O2. It gives carbon monoxide, CO. कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, यानी जो ऑक्सीजन है किसकी सरफेस पर, ग्रेफाइट की सरफेस के ऊपर, अगर ये ग्रेफाइट की सरफेस है, इसके ऊपर जैसे ही क्या टकराएगी, ऑक्सीजन आकर के टकराती है, तो क्या बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यानी यहाँ सरफेस के ऊपर ऑक्सीजन आकर के ये टकराती है तो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड इवॉल्व होती है। ठीक है जी। ऑन हीटिंग द सरफेस आफ्टर एडजॉर्प्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड इज डिसॉल्व्ड बट नॉट द एटॉमिक ऑक्सीजन। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड ही डिसॉल्व होगी, एटॉमिक ऑक्सीजन डिसॉल्व नहीं होगी। क्लियर। नाउ लेट्स सी फैक्टर्स अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन। Factors affecting adsorption. What are the factors which affects the adsorption? The first one is nature of adsorbent. Second one is nature of adsorbate. And the third one is temperature. And the fourth one is pressure.
These are the factors on which adsorption affects. Now, first one is nature of adsorbent. Adsorption is a surface phenomena. It depends upon the surface area of adsorbent. It means we can say that surface area is directly proportional to the rate of adsorption. यानी इसके ऊपर डिपेंड करेगा सरफेस एरिया के ऊपर। तो यहां कहेंगे जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एडसॉर्प्शन होगा। ठीक है जी। लेट्स सी इफ वी हैव द solid charcoal in the form of solid, whereas powdered charcoal, solid charcoal और powdered charcoal, क्योंकि यहां पर क्या है लेस एरिया है इसलिए एडसॉर्प्शन नहीं होगा। whereas यहां पर एरिया क्या है लार्ज एरिया है, ज्यादा है, मोर एरिया है, इसलिए यहां एडसॉर्प्शन पाउडर चारकोल के अंदर होगा। फाइनली डिवाइडेड सब्सटेंसेस आर गुड एडसॉर्बेंट्स एज दे प्रोवाइड लार्जर सरफेस। अगर एरिया ज्यादा है तो आपका एडसॉर्प्शन भी ज्यादा होगा। जबकि रफ सरफेस है, रफ सरफेस प्रोवाइड्स लार्जर सरफेस एरिया। जो रफ सरफेस होती है वो भी हमको क्या देती है लार्जर सरफेस एरिया देती है, इसीलिए वहां भी रेट ऑफ एडसॉर्प्शन ज्यादा होगा। एंड एक्टिवेटेड और चारकोल, दैट इज इफ इट इज एक्टिवेटेड चारकोल दैट हैज बीन हीटेड और otherwise treated to increase its adsorption power, यानी जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है उसका भी एरिया क्या है ज्यादा होता है, इसलिए एडसॉर्प्शन ज्यादा होता है। नाउ सेकेंड वन इज नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट मीन्स गैस। नेचर ऑफ एडसॉर्बेंट, इजीली लिक्विफाइबल गैसेज आर एडसॉर्ब्ड टू ग्रेटर एक्सटेंट, यानी जो लिक्विफाइड गैसेज होती हैं वो अधिक मात्रा के अंदर क्या हो जाती हैं एडसॉर्ब हो जाती हैं। वेयरएज इजीली लिक्विफाइबल गैस मींस हैविंग हायर टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड, यानी लिक्विफाइबल है तो उसकी टेंडेंसी क्या है कि वो लिक्विड के अंदर चेंज हो जाएगी, इसलिए वहां पर भी क्या होता है एडसॉर्प्शन ज्यादा होता है। देन विच इन टर्न शुड हैव ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन, उनके बीच में क्या होता है ग्रेटर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है। फॉर लिक्विफैक्शन ऑफ गैस, अगर हम किसी गैस को द्रवित करना चाहते हैं, सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, तो वहां पर हमें क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर की जो एक निश्चित ताप होता है जिसके ऊपर वो गैस जाकर के लिक्विफाई कर जाती है उसकी आवश्यकता होती है। अबव दिस टेम्परेचर गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, इस टेम्परेचर के ऊपर जाकर के गैस लिक्विफाइड नहीं करती है। अगर क्रिटिकल टेम्परेचर जिसको ठीक है उससे ऊपर गैसेस क्या आती हैं लिक्विफाई, उससे इजीली उससे नीचे ही गैस क्या कर जाती है लिक्विफाई कर जाती है। हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ ए गैस more easily it will be liquefied and hence absorbed to greater extent, इसलिए उसका एडसॉर्प्शन क्या होगा अधिक मात्रा के अंदर होगा। ठीक है। whereas we have a list, in this list there is a critical temperature of gases and volume adsorbed। मैं एक टेबल बनाता हूं जिसके अंदर दिखाया गया है कि उसका जो टेम्परेचर है क्रिटिकल टेम्परेचर है उसके ऊपर उसका कितना वॉल्यूम क्या होता है एडसॉर्ब होता है। लेट्स सी, देयर इज अ टेबल
there are some gases which have a certain critical temperature and amount absorbed in milliliter. Sulfur dioxide critical temperature is 430. Amount absorbed is 380 ml. Ammonia 406, 180. Carbon dioxide 304, 48. Ammonium 190, 16.2. That is ammonia NH3. 190, 16.2. Carbon monoxide 134, 9.3. Nitrogen 126 or amount absorbed is 8 ml, whereas hydrogen that is 33, 4.5. आप इस टेबल के अंदर देखेंगे कि जैसे जैसे क्रिटिकल टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लिक्विफेक्शन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, एडजॉर्प्शन भी डिक्रीज होगा। मीन्स क्रिटिकल टेम्परेचर डिक्रीजेस, ईज ऑफ लिक्विफेक्शन डिक्रीजेस एंड एडजॉर्प्शन शुड बी absorption would be decreases. Clear? And thus gases such as sulfur dioxide, chlorine, ammonia, etc. are easily liquefiable, are absorbed to a greater extent. अधिक मात्रा के अंदर क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। The gases like nitrogen, oxygen, hydrogen, etc. are डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। ये गैसेस क्या होती हैं, आसानी से लिक्विफाई नहीं होती। नाउ थर्ड फैक्टर इज अवर टेम्परेचर। एड्जॉर्प्शन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एड्जॉर्प्शन क्या है, एक एक्सोथर्मिक, एक्सो मीन्स आउटसाइड, थर्म मीन्स हीट, यानी जहां पर हीट क्या होती है, निकलती है, इवॉल्व होती है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर प्रिंसिपल, ला शतालिये के नियम के अनुसार, इट इज फेवर्ड एट लो टेम्परेचर। ये किसके ऊपर होगा, कम ताप के ऊपर होगा। मीन्स एड्जॉर्प्शन क्या होगा, अगर हीट निकल रही है पॉजिटिव, किसके अंदर चेंज होगा, डिजॉर्प्शन के अंदर, और वही हीट अगर पॉजिटिव के अंदर है तो एड्जॉर्प्शन से डिजॉर्प्शन होगा, और अगर हीट निगेटिव में है तो डिजॉर्प्शन से एड्जॉर्प्शन होगा। अगर हम जैसे जैसे टेम्परेचर को रेज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो क्या होगा, एड्जॉर्प्शन हमारा कम होता जाएगा, एड्जॉर्प्शन डिक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है जी। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस फ्रॉम, देखो इसको मैं ग्राफ के द्वारा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरीके से टेम्परेचर के ऊपर टेम्परेचर कैसे इसको प्रभावित करता है। लेट्स सी ए थ्रू ए ग्राफ। There is a graph in which we have the constant pressure and there is a gas which is absorbed at a different volume and different temperature, absorbed in centimeter, that is in cubic centimeter. That is a graph of volume of nitrogen gas absorbed versus pressure, यानी प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो उसके ऊपर एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जैसे जैसे क्या है, टेम्परेचर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मीन्स फ्रॉम 193 केल्विन टू 273 केल्विन एट ए कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। द वॉल्यूम ऑफ गैस एब्जॉर्ब डिक्रीजेस फ्रॉम V3 टू V1, उसका जो वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज करके V3 से कितना हो जा रहा है, V1 हो जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द रेट ऑफ एड्जॉर्प्शन। चौथा फैक्टर है, उसके लिए हमें एक थ्योरम देखना है जिसको हम जानते हैं फ्रंटलिच एड्जॉर्प्शन आइसोथर्म। उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर
डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के अंदर केवल इतना ही। इससे रिलेटेड यदि आपको कोई डाउट आता है तो आप उसको पूछेंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच।